सर आज आप रीडिंग करवाना जहाँ से आपने छोड़ा। यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ चलिए, यशिका आगरे, यशिका आगरे यस सर। कंटिन्यू बेटा. This Yes. this Yes chapter sir. is actually your fourth chapter, Okay sir. the cope and anthem. Okay. Before you read, okay, start from here. Before you read. Okay, beta. Continue. Before you read, have you ever yourself in a situation in which what happened opposite of what you expected? If so, are familiar with the irony of the which is often embarrassing that you are going. So ये कौन सा चैप्टर है? Chapter number 4 in your supplementary book. To stay. Sophie comes to a decision at last. Sophie moved restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs. Hurricanes are to die south. People went new warm coats, and so Sophie moved restlessly on his seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. A dead leaf fell at Sophie's feet. That was a special sign for him that winter was coming. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. Sophie might now realize that fact the time had come. Okay, beta. He had Okay, to okay. find some way Okay, to Yashika Agre, take beta. care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. Okay, beta. Okay, okay, very good. Mohini, next. Okay. Sophie's hopes for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of Southern skies. southern skies or of the Bay of Naples. 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 3 months in the prison on Black Blackwell's bells. Island आइलैंड, was बेटा इसको आइलैंड पढ़ते हैं. यहाँ पर क्या होता है, इसमें एस साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको आइलैंड पढ़ते हैं. आइलैंड. Island was what he wanted. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from chops. Copes. This is what Sophie wanted most in the world. Very good. For your Very good. Next student. मोहिनी भाई निर्मित गौड़. Yes बेटा. For years. निर्मित बेटा. यस सर. बेटा Yes. कंटिन्यू योर सर आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही. ओके सर कहाँ से पढ़ना है? फॉर इयर्स. Yes sir. For years, black whales in Island. Island. Yes sir. Island had been his winter home. Richard New Yorkers made their New Yorkers. New Yorkers made their plans to go to. So ये क्या लिखा है? Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. Sophie made his small
small prawns for going to the आइलैंड island ओके बेटा, पलक गौर, island पलक and now. बेटा रुक जाओ, निर्मित आप रुक जाओ, पलक आप कंटिन्यू करो बेटा आगे। Yes, sir. And now the time had come. Three big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. ओके बेटा, रिंकी राठौर नेक्स्ट, Yes, sir. Yes, कंटिन्यू। So Sophie was thinking of the Iceland. Island. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. This would be sent to him. He could move from one building to another, and he taken care of through through the the winter, but he liked Blackwell Iceland better. बेटर। ओके बेटा, रितिका कुमारी, यस बेटा, रितिका कुमारी, यस बेटा, रितिका कुमारी, डू यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. यस बेटा, कंटिन्यू। सोपीज स्पिरिट, सर आपकी स्क्रीन फुल नहीं दिख रही, यहाँ से थोड़ा स्क्रीन Yes, नहीं दिख, sir. क्या नहीं दिख रहा बेटा? कहाँ से सर? सोपीज स्पिरिट वाज प्राउड, पढ़ो बेटा। Soapy spirit was proud. If he went any one of these places, there were certain things he had to do. In a way or another, he would have to pay for what they gave him. They would not ask him for money, but they would make him wash the whole body. They would make him answer. They would make him answer question. They would want to know everything about his life. ओके बेटा, ओके ओके। सरिता महावर, Yes, sir. कहाँ से? नो प्रिजन वाज बेटर, नो Was better than that the present and rules that he will have to follow, but is prime a gentleman as own life has settled his own life. बेटा। So- सरिता, आपका क्या नाम है, पूरा नाम बताओ आप। पूर्ति महावर सर, पूर्ति महावर। पूर्ति महावर बेटा, आप फिर से रीडिंग करो जरा, एक एक वर्ड को आपको फिर से रीड करना है। नो, यहाँ से फिर से रीडिंग करो। Yes, sir. No person has better हैज नहीं है बेटा, than आप क्या पढ़ रहे हो, देखो प्रेजेंट वाज, आप वाज को हैज Was. पढ़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? better than that the person had rules that he would have वर्ड नहीं है, to वुड, follow. ही वुड, He would, but his person a gentleman has gentleman one life has settled with स्टिल his स्टिल still has His. o- स्टिल हिज ओन लाइफ। own life. So सोपी Sophia having डिसाइडेड decided to go to the island at once, began to move towards this discuss डिजायर। ओके बेटा, their बेटा पूर्ति, Yes, sir. आपको घर पे पर डे रोज आपको 20 मिनट से लेकर के 30 मिनट, मतलब कम से कम 20 मिनट, अधिक से अधिक
30 मिनट, आधे घंटे आपको रोज आपको घर पे बुक पढ़ना है, ठीक है बेटा। हाँ, किसी भी समय 24 आवर में किसी भी समय आपको आधे घंटे बुक पढ़ना है। और जहाँ आपको दिक्कत आती है आप हेल्प लीजिए अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, किसी से भी आप हेल्प लीजिए, थोड़ा पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। Okay, sir. हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट सौम्या यादव। यस बेटा। देयर आर Uh, मेनी इजी वेज। There were many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay. And then a cop would be called. It would all be done very quietly. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. The judge would do the rest. Next. Sophie left his यस बेटा। Sophie left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. He went across the wide space and started north on Broadway. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. ओके बेटा। Sophie ओके बेटा, वेरी गुड, योर रीडिंग इज क्वाइट एक्सेलेंट। ओके, कंटिन्यू इट। शिव राय, शिव राय बेटा, कंटिन्यू नेक्स्ट पैराग्राफ। शिव, डू यू लिसनिंग टू मी? शिव राय। ओके, शुभ रजक, शुभ रजक। Yes, sir. ओके बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ। Sophie believed that above his legs he looked all right. His face was clean, his coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his the part of him that would be seen above the table would look all right. The waiter would bring him what he asked for. He began thinking of what he would like to eat. In his mind, he could see the whole dinner. The cost would not be too high. He did not want the restaurant people to feel any real anger. ओके बेटा, But the नेक्स्ट dinner नेक्स्ट would नेक्स्ट शुभ रजक के बाद सुहासी बाथरी बेटा, आप पढ़ोगे। बट द डिनर वुड लीव हिम फेल्ड। सुहासी, सुहासी। नेक्स्ट तरुस्क, तरुस्क। Yes, sir. हाँ बेटा, अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे यहाँ से। बट द डिनर, तो कहाँ से पढ़ना है? आप ये देख लीजिए, आपके बुक में जहाँ पर पेज नंबर 23 लिखा है उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये वाली लाइन आप देख सकते हैं। बट द डिनर वुड लीव हिम। देख पा रहे हो पेज नंबर 23 कहाँ लिखा है, देख पा रहे हो क्या? Yes, sir. 23 उसके थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो ये लाइन आपको मिल जाएगी। बट द डिनर, Yes, sir. मिल गई. But the dinner would leave him filled and happy filled and happy for the enjoy for the journey to a journey to his winter home. yes But Sophie as Sophie put his foot inside the restaurant door, the head visiting waiter the head waiter say saw saw him broken old shoes and the Tom's clothes that covered
his leg. Strong, strong, and strong ready hands and ready hands. turned Soapy Turned, turned Soapy around and moved him quickly and quickly, quietly and quickly. quietly outside again. ओके बेटा, ओके Soapy ओके turned. तरुष्क, आपकी रीडिंग तो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पीड नहीं है, अभी थोड़ा स्पीड और अच्छी करनी पड़ेगी। तो आपको स्पीड के लिए क्या करना है, थोड़ा सा घर पे आप स्पीड से पढ़ने की प्रैक्टिस करिए, और ये प्रैक्टिस कम से कम आधे घंटे आपको करना है रोज, तब इसमें स्पीड आ Okay. जाएगी। अभी तो आपका काफ़ी इम्प्रूव हुआ है कि आप पढ़ पा रहे हैं, अदरवाइज शुरुआत में बहुत काफ़ी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, नीचे वालों की रीडिंग के बाद अगर टाइम बचा तो आप हमारी रीडिंग करवाएंगे फिर से स्टार्टिंग से। ठीक है, करा सकते हैं बेटा, करा सकते हैं बिल्कुल। वंस गॉड, यस बेटा, कंटिन्यू करो। Yes, sir. सोपी टर्न ऑफ, सब एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी बेटा, सोपी Sophie turned off a boardway. It seemed that this most easy way to the आइलैंड, island was not to be his. He must think of some other way to getting there. At the corner of Sixth एवेन्यू, Avenue was asleep with वाज अ a शॉप, वाज अ शॉप, was a shop with a glass window, वाइड ग्लास bright विंडो, wide glass window bright with electric lights. Sophie picked up a big stone and threw it through, through थ्रू द the ग्लास, glass. Through the glass, people came running around the corner. A cop was the first among them. Sophie stood still and he smiled when he saw the cop. सॉ द कॉप। ओके, नेक्स्ट विद्या जाटो, यस बेटा, कंटिन्यू। सर कहाँ से? पेज नंबर 24, पेज नंबर 24, you can see a beautiful photograph of a policeman and Soapy. Vidya, Where's page, the man? सर पढ़ूं? yes बेटा, Where's the man that did that? Asked the cop. Don't you think that I might have done it? Said Sophie. He was friendly and happy. What he wanted was coming toward him. But the cop's mind would not consider Sophie. consider Soapy, Consider Sophie. Man who break, break window do not stop there to talk to cops. They run away as fast as they can. The cops say a saw a man man, saw a Saw. man, saw a man further, further along the street running. He ran after him and Sophie stick at her. Walking slowly away, he had failed 2 times. okay बेटा, Yasmita Kushwa, Yes, sir. Across the sea was another restaurant. It was not as fine as the one of Broadway. The people who went there were not tourists. Its food was not so good. Into the shop he took his old shoe and his stone clothes, and no one stopped him. He sat down at a table and was soon eating a big dinner. okay बेटा, Yasmita Kushwaha, your reading is completed. So सर आप शुरू से पढ़ा I can repeat it, but one question to all of you. This is time for a brainstorming
are thinking about a question. सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए ना, सबकी रीडिंग तो हो गई। Okay, that is Chapter to related. explain. That is related to your civics, political chapter number 2. But the question is related to chapter number 1. The question is, what do you think about equality? First chapter is completed in your civics, the equality. तो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट इक्वलिटी? आप लोग समानता के बारे में क्या सोचते हैं? समानता के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं एक एक करके पूछ सकता हूँ। अदिति बेटा, आप समझते हो क्या? फर्स्ट चैप्टर जो सिविक्स में पढ़ा दिया गया है उसमें ये पढ़ाया गया था कि इक्वलिटी क्या है, समानता क्या है, ठीक है? उसके बारे में ज़रा बताएं आप लोग। समानता के बारे में चलिए, इस तरह से अगर आंसर नहीं आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट जो समानता के बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हैं वो बता सकते हैं कि समानता से आप क्या समझते हैं, समानता किसे कहते हैं, आप किस चीज़ को समानता मानते हैं? सर बिना भेदभाव के। नहीं, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल वे में बताएंगे। प्रैक्टिकल जैसे आपको क्या लगता है कि अभी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी प्रशासन में जो चीज़ें, जी बेटा बोलो। सर समानता मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। हाँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आप उसको, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप उसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ मैं जो बता रहा हूँ एकदम ठीक बता रहा हूँ। All are equal. Sir, please repeat the question. बेटा, समानता से आप क्या समझते हैं, इक्वलिटी से आप क्या समझते हैं? हम कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, उससे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर की बात इसलिए कर रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल, जी बेटा बोलो। सर वो ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो सब लोग हैं, एवरीवन, सबको राइट एंड एडवांटेज मिलती है, मतलब सबको सामान्यता मिलती है और सबको एक जैसा व्यवहार मिलता है। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कुछ सिचुएशन, सेम राइट्स एंड एडवांटेज। जी, मैं एक सिचुएशन को बता रहा हूँ आपको, आप बताएंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर समानता का नियम चल रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जैसे कोई खेल है, किसी खेल में पार्टिसिपेंट भाग लेने वाले हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और हमने सभी लोगों के लिए क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को हमने वहाँ बुला लिया है, और सबके लिए हमने 100 मीटर की दौड़ रखा है, 100 मीटर की रेस हमने रखा है, और सबके लिए हमने ये स्टैंडर्ड बना दिया है कि जो बच्चा 20 सेकंड में, 20 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ को पूरी करेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, और अगर 20 सेकंड से ज़्यादा समय लेगा तो उसको कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा। मैंने ये नियम सही बनाया है आपके अनुसार, या हमने नियम को गलत बनाया है? आप इसको बताइए। सर आपने थोड़ा सा गलत बना लिया है। अगर 8 क्लास के और 7 क्लास के बच्चे 6 क्लास से करेंगे तो 6 क्लास के थोड़े छोटे रहते हैं तो वो धीरे भाग पाएंगे, और 8 क्लास के बच्चे तो बड़े रहते हैं तो वो लोग तेज भाग पाएंगे। तो मैंने तो समानता का नियम लगाया है, सबके लिए एक रूल बनाया है, तो मैं गलती क्या कर रहा हूँ आप बताइए, मैं इसमें क्या गलती कर रहा हूँ? आप गलती ये कर रहे हैं सर, आप 8 वाले बच्चे अगर तेज दौड़ेंगे तो उनको प्राइज मिल जाएगा जी। तो आपको सारी क्लासेस का अलग अलग करना था, आपको अलग नियम बनाते थे कि चलिए ठीक है, चलिए आप लोगों का यस, मुझे भी बोलने सर नहीं दीजिए। आप, हाँ सर आपने ये गलती करी कि आपने उसको 20 मिनट दिए, क्योंकि ऐसे तो रेस होती है 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास की, ऐसे ही रेस होती है, मतलब हर जगह पर, स्कूल में तो ऐसे ही होती है, बट आपने ये गलती करी कि आपने उनको 20 मिनट दिए हैं। अच्छा, मतलब मुझे टाइम को कम सर आपको ओनली 8 क्लास के बच्चों को एक टाइम देना है और अलग अलग क्लास को अलग अलग टाइम देना है। ओके, चलिए सर आपको ये करना है कि हर क्लास को अलग अलग टाइम देना है। ओके, चलिए आप लोग
कुछ हद तक आपका तो ऑब्जेक्शन अच्छा है। बड़े बच्चे वो तो जल्दी कर लेंगे, इसलिए उनको प्राइज मिलेगा। हाँ, आप लोगों का ऑब्जेक्शन ठीक है, आप लोगों का ऑब्जेक्शन ठीक है। अब मैं आप लोगों की बात को करता हूँ दोबारा से कि क्लास 6 के बच्चों को हम रनिंग कराते हैं और उनको हम 20 सेकंड का समय देते हैं सभी के लिए, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, सभी के लिए अगर मैं 20 सेकंड का समय देता हूँ तो क्या मैं सही नियम बना रहा हूँ? यस सर, अगर आप 6 लाख बच्चों को दे रहे हैं तो फिर सही है। यस सर। मतलब Yes, sir, सही है। गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए सबके लिए मैं 20 सेकंड का समय रख रहा हूँ, तो ये मैं सही कर रहा हूँ? यस सर, यस सर। यस सर, सही कर रहे हैं। ओके। सर अगर आप क्या ऐसा रखते कि बॉयज के लिए आप 20 सेकंड रखते और गर्ल्स के लिए 15 सेकंड रखते तो इसमें अनइक्वालिटी होती। यानी हमने जो किया है 20 सेकंड का समय सभी के लिए रखा है, एकदम हमने सही काम किया है। यस सर, बेटा यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं इस चीज़ को भी आज डिस्कशन कर रहा हूँ। थोड़ा तेज भाग लेते हैं। हमेशा जो गर्ल्स होती हैं ना, उनको ये माना जाता है कि वो फिजिकली बॉयज़ से कम स्ट्रांग होती हैं, फिजिकली बॉयज़ से कम स्ट्रांग होती हैं, ऐसा नहीं ठीक है? होता। और उनके लिए सर लेकिन ऐसा होता नहीं है। यस सर, नहीं होता है ऐसा। हार जाता हूँ। ओके, चलिए अगर इस ऑब्जेक्शन को भी अगर हम दूर करते हैं तो क्लास 6 में जो बच्चे हैं, क्या सभी बच्चों की जो हाइट है, जो सभी बच्चों की उम्र है, क्या सभी बच्चों की उम्र और हाइट एक जैसी है? नो नो सर, तो सबकी अलग अलग हाइट है। समानता का नियम है बेटा ने, हमेशा हो वो सकती है। एज और हाइट, खास करके जब हम कोई गेम खेलते हैं, किसी भी गेम में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें उनके हाइट और वेट प्लस एज, इन तीनों को मैटर करते हैं। सर सेम हो सकती है। हाँ, सेम वेट वालों को वो जैसे आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि जब भी कोई रेसलिंग कंपटीशन होता है, जो कुश्ती की प्रतियोगिता होती है, रेसलिंग कंपटीशन होता है, उसमें आप लोग देखते होंगे, न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते होंगे कि उसमें वेट की कैटेगरी होती है। 50 kg वेट, 55 kg वेट, 60 kg वेट, 65 kg वेट की कैटेगरी होती है ना? करते हैं। हाँ, रेसलिंग में केवल क्लास कंसीडर नहीं करता है, उसमें पूरा बॉडी का वेट, और कई बार कुछ ऐसे कंपटीशन होते हैं जिसमें उसकी एज भी कंसीडर करती, एज देखा जाता है कि किसकी उम्र कितनी है। जैसे 15, आप देखते होंगे कि कुछ वर्ल्ड कप जो गेम के होते हैं, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 20, इस तरह के गेम्स होते हैं, है ना? तो कुल मिला के मेरे ये बात बताने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी कंपटीशन कराते हैं तो उसमें हम सारी चीज़ों को देखते हैं। जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो क्षमता है, उनकी जो एबिलिटी है, एक क्षमता के लोगों को हम एक ग्रुप में रखते सर हैं। अगर अपन ऐसा करवाएंगे कि 6th 7th 8th का करवाएंगे तो उसमें भी 6th क्लास के बच्चे जिनकी हाइट 8th क्लास के बच्चों के जैसी है, जो जिनकी हेल्थ अच्छी है उनको ही लेंगे, और 7th में भी ऐसा ही करेंगे। बिल्कुल, आप थोड़ा समझ पा रहे हो। जब भी हम कंपटीशन कराते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो क्षमता है वो एक जैसी हो, उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। और अगर क्षमता अलग अलग है तो उनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। या तो हम ये करेंगे, या तो फिर हम नियम में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करेंगे, नियम में थोड़ा सा हम अंतर करेंगे। अलग अलग क्षमता वालों के लिए जो कंपटीशन को बीट करने का जो स्टैंडर्ड है, जो उसका नियम है, उसको हम नीचे ऊपर कर देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल और आप लोगों को दे करके बताता हूँ। जैसे आपने अगर हाई जंप का आपने कंपटीशन रखा है, हाई जंप समझ पा रहे हो ना? हाई जंप, यस सर। और हाई जंप में भी मान लीजिए कि आपने कंपटीशन रख दिया, तो आपको ये करना होगा कि अलग अलग हाइट के बच्चों के लिए, अगर बच्चों की हाइट अलग अलग है, उनके लिए जो हाइट आपने रखा है कि इतना फीट आपको उछलना है तो आपको प्राइज़ मिलेगा, उसमें हम नीचे ऊपर करेंगे, हाइट में डिफरेंस करेंगे। कम हाइट के बच्चे के लिए कम हाइट आप रखेंगे उछलने के लिए, ज़्यादा हाइट का बच्चा है तो उसके लिए ज़्यादा स्टैंडर्ड रखेंगे।
सर हाइट वाइज हाइट हाँ, सर हाइट height वाइज हाइट एक हाइट के बच्चे के लिए हाइट अलग, एक प्रकार के हाइट के बच्चों के लिए अलग हाइट होगी और उससे छोटे जो कद के बच्चे हैं उनके लिए अलग हाइट होगी। तब ये कंपटीशन आपका फेयर कहा जाएगा, सही कहा जाएगा। नहीं तो यहाँ पर क्या होगा कि कम हाइट का बच्चा तो बिल्कुल उतना हाइट को पार ही नहीं कर पाएगा जो आसानी से बड़े हाइट का बच्चा कर लेगा, ज़्यादा ऊंची हाइट का बच्चा कर लेगा। तो यहाँ पर असमानता हो जाएगी। जैसा अगर आप एक ही रूल लगाएंगे, एक ही जैसा नियम सभी के लिए लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, असमानता हो जाएगी। उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा जिनकी ऊंचाई कम है, जिनकी उम्र कम है, जिनकी एज कम है, जिनका वेट कम है। ठीक है, जैसे अभी आप अगर रेसलिंग कराते हैं, कुश्ती कराते हैं, तो कुश्ती कराने में अगर आप 60 केजी वाले के साथ अगर 50 केजी वाले को अगर लड़ा देंगे, कुश्ती करा देंगे, तो 60 केजी वाला आसानी से 50 केजी वाले को पटक सकता है, उसको परास्त कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ हाँ, तो हम जब भी समानता की बात करते हैं, समानता में हम केवल नियम समान बनाने की बात नहीं करते हैं, बल्कि जो लोग उस नियम से लाभ उठाने वाले हैं, हम उनको ये भी देखते हैं कहीं कहीं इस नियम से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम अलग प्रकार का नियम बनाते हैं जिससे कि सभी लोगों को समान प्रकार का मौका मिले, समान अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, तो समानता एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। समानता में हम केवल नियम समान बनाने की बात नहीं करते हैं, बल्कि उसके जो पार्टिसिपेंट हैं, उसका जो लाभ उठाने वाले लोग हैं, हमें उनके बारे में भी विचार करना होता है और उस हिसाब से हम नियम में बदलाव करते हैं, तभी ये पूरी तरह से समानता हो पाती है। अदरवाइज किसी के साथ न्याय होगा तो किसी के साथ अन्याय हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो इस बात पर आप लोग जरूर विचार करिए, समझिए, और कहीं पर कुछ और नई जानकारी मिलती है जरूर उसको शेयर करिए, आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट चैप्टर है जी बेटा। महाभारत में हर बार उसके साथ असमानता होती थी, क्या जी। नाम तो सर कर्ण के साथ। जी 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 बिल्कुल। देखिए जो पुरानी जो कथाएं हैं, पुरानी वो जो भाई तो पांडवों का ही था पर उनके साथ समानता होती। जी, तो पुराने जमाने में समानता का जो विचार है इतना ज़्यादा किसी को पता ही नहीं था, यदि पता होता तो वैसा करते ही नहीं, लेकिन कुंती जी को ही पता था। वो एक तरफा समानता का विचार था, वो दो तरफा नहीं था। हमें दो तरफा विचार करना पड़ता है, पुत्र कहलाता था। हमें दोनों तरफ विचार करना पड़ता है। वो नहीं कहलाता था, वो अंगराज कहलाता था। सबसे पहले पुत्रों को पानी में छोड़ दिया गया। जी 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 जी। तो पुराने में जमाने में जो समानता का विचार था, जो इक्वलिटी का विचार था, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, इतना विकसित नहीं था, इतना उसमें लचीलापन नहीं था, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, बहुत ही हार्ड था। करते थे, अपन को भी दो तरफा करते। जैसे जैसे समय बीता है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी है, तो समानता के बारे में लोग और गहराई से विचार करके उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। एक एग्जांपल दूं सर, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जी 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 बेटा, बिल्कुल सही बता रहे हो, बताओ। सर जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब वे स्कूल में जाते थे तो बाकी सारे बच्चे अंदर बैठते थे और उन्हें बाहर खड़ा कर दिया जाता उनके था। साथ तो बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ था, बहुत ज़्यादा। हाँ, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ था, लेकिन वो भेदभाव उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया, और वो आगे चल कर हमारे लिए एक इंस्पिरेशन, हाँ, वो प्रेरणा बन करके सर अफ्रीका में ब्रिटिश वाले लोगों ने हमला कर दिया था, जब जितने भी काले लोग थे उनके साथ तो बहुत ज्यादा इक्वालिटी होती। बिल्कुल, उसके लिए फिर आपने पढ़ा ही है कि उसके लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत लंबा संघर्ष किया और उनको उस रंग भेद की नीति से उन्होंने उनको मुक्त कराया। सर जैसे कि लास्ट ईयर जॉर्ज फ्लोइड के साथ जो हुआ था, वो भी इनइक्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता ही रहता है। हाँ, ये जो असमानता यूएस में ब्लैक पीपल के लोग बहुत अपने बारे में होता है यूएस में। जी बेटा। हाँ, सौम्या यादव कुछ बोलना चाह रही बेटा? नहीं, कुछ नहीं। ओके सर पहले के लोग बहुत सेल्फिश थे और अपने बारे में ज्यादा सोचते थे। जी, और पहले ये जो समानता का विचार था, इतना इसमें मॉडर्निटी नहीं आई थी, इतनी इसमें आधुनिकता नहीं आई थी। केवल लोग नियम पर ध्यान देते थे,
जो उसके लाभार्थी हैं, जिनको उससे लाभ मिल रहा है, उन पर वो कम विचार करते थे। लेकिन वर्तमान समय में इस पर काफ़ी गहराई से लोग विचार करते हैं और उसके अनुसार ही लोगों को अवसर दिया जाता है, लोगों को मौके दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास। कल हम दोनों चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू। Bye sir, thank you for class. Bye sir, thank you for class. Have a good day, sir. Bye sir. बाय बेटा, बाय। Bye sir. Bye sir. Have a good day. थैंक यू। Bye sir. Bye, sir. Thank you for class.